Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain operators in Java. Operators in Java means operators are used to operate the operands. Operand means variables and literals are called operands. Variables and literals are called operands. जैसे हमने लिखा a plus 5, so in this case a is a variable and 5 is a literal or constant and plus is an operator. So plus operate the a and 5, so it is called operator. So operators are used to operate the operands. Clear? So in general there are three types of operator. In general there are three types of operator: unary operators, binary operators and ternary operators. There are three types of operators: unary operators, binary operators and ternary operators. In unary operators we can use single operand. Unary operator take single operand. For example, plus plus, minus minus, plus minus, not and bitwise not. These are unary operators. Like this, if you have a is equal to 5 and we write a is equal to minus 5, then a will be changed. A will be 5. Okay? If we use minus, then change the sign. If we use plus, then never change the sign. If a is positive, if you use minus a is equal to minus a means change the sign. Value of a is 5, then change the sign, then value will be minus 5. Okay? If value of a is negative and we use minus, then change the sign, means positive. If value is negative, then positive, then positive, then negative. It is unary plus and unary minus. Plus and minus are also present in binary operators for addition and subtraction, but if you use minus and plus, these are also unary operator. Plus it never change the value, but minus change the value. If value is negative, then convert into positive. If value is positive, then convert into negative, like this. Okay? If a is equal to 5, if you write a is equal to minus a, then change the sign, means a will be minus 5. If a is equal to minus 5 and a is equal to a minus a, then change the value, then a will be 5. Okay. So next is binary operators. Binary operator take two operands. इसमें कम से कम दो ऑपरेंड्स होंगे. तो कौन कौन? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड लेस देन, मोर देन, एक्सेट्रा. दीज आर बाइनरी ऑपरेटर्स. इसमें कम से कम दो ऑपरेंड्स होने चाहिए. दो ऑपरेंड्स होंगे बाइनरी. अगर सिंगल ऑपरेंड है तो यूनरी. और थर्ड होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर्स टेक थ्री ऑपरेंड्स. अब इसमें थ्री ऑपरेंड्स होते हैं टर्नरी में. इसका एक होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर. तो इसमें क्वेश्चन मार्क का फॉलन होता है. इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे. तो आपका क्या क्या हो गया? यूनरी इट टेक सिंगल ऑपरेंड, बाइनरी ऑपरेटर टेक टू ऑपरेंड्स एंड टर्नरी ऑपरेटर थ्री ऑपरेंड. ये जनरल तीन टाइप के होते हैं, लेकिन बाकी और भी टाइप होते हैं. ये जनरल टाइप है. उसके बाद आता है सम ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज. कौन सा? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस प्लस माइनस माइनस, बिटवाइज ऑपरेटर्स, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, conditional operators, new operators,
and dot operator also. Dot is also an operator. Okay. So I'll explain one by one. Arithmetic, relational, logical, assignment, increment or decrement, bitwise, shorthand, conditional, new and dot operator. So arithmetic, these are some arithmetic operators: multiply, divide, modulus, plus, minus. Multiplication for it is multiplication, it is for division, it is for remainder, it is modulus, remainder, plus for addition and minus for subtraction. These are operators, arithmetic operators. Relational operator, there are 6 relational operators: less than, more than, less than or equal to, more than or equal to and not equal to. Double equal. Double equal is a relational operator. Relational operators are used to compare two elements. Relational operators are used to compare two elements. दो एलिमेंट जब कंपेयर करना होता है तो हम रिलेशन लगाते हैं, यानी कोई कंडीशन बनाना होता है. जब कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को, तो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. तो फॉर कंपेरिजन वी यूज रिलेशन ऑपरेटर. लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, इक्वल टू. फॉर इक्वल टू डबल इक्वल लगता है, डबल इक्वल लगता है रिलेशनल में, और सिंगल इक्वल आगे बताएंगे किस लिए लगता है. नॉट इक्वल. तो दीज आर 6 रिलेशन ऑपरेटर फॉर टेकिंग कंडीशन. कंडीशन लेने के लिए होता है और कंडीशन की वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स होती है. उसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर में 3 होते हैं. एक होता है एंड, एक होता है और के लिए 2 लाइनें की होती हैं, बीच में कटा होता, दिखता नहीं है. अगर रेजोल्यूशन आपकी मॉनिटर का सही है तो दिखता है. तो जनरली दिखता क्या है, 2 लाइनें सीधी खड़ी खड़ी दिखती हैं और के लिए, लेकिन बीच में कटा होता है अगर आप सही से देखेंगे. और ये नॉट के लिए होता है. तो 3 ऑपरेटर हैं. ये दोनों बाइनरी बोले जाते हैं और ये यूनरी होता है. इसके लिए सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है. इन दोनों के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है. 2 कंडीशन को आपस में कंपेयर करते हैं. उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर इक्वल है. जब हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने a इक्वल टू 5 लिखा. इसका मतलब है हमने असाइन 5 इंटू ए, असाइन 5 इंटू ए, 5 ए में असाइन हो गया. तो ये इक्वल साइन क्या कर रहा है, ये असाइन कर रहा है. तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. ये एक सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है. जैसे हमने लिखा a इक्वल 5, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल लगाया है तो ये रिलेशनल हो गया. तो ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि a इक्वल 5 और नॉट, a इक्वल 5 और नॉट, a 5 के इक्वल है या नहीं है. अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा. तो रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल रिलेशनल होता है और सिंगल इक्वल असाइनमेंट होता है. ये असाइन करता है वैल्यू और ये चेक करता है वैल्यू. दोनों में डिफरेंस है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. अगला है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं. तो बहुत ईजी है, सबसे ईजी यही है, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं. अब इसमें क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब है वेरिएबल से पहले आना, प्लस प्लस या माइनस माइनस को, और पोस्टफिक्स का मतलब है वेरिएबल के बाद में आना, प्लस प्लस या माइनस माइनस. प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीज बाय 1 और माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीज बाय 1. प्लस प्लस एक इंक्रीज करता है और माइनस माइनस एक डिक्रीज करता है उस वेरिएबल की वैल्यू में, पूरे एक्सप्रेशन में नहीं, उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है. बच्चे सोचते हैं पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज होती, नहीं, उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा. प्लस प्लस 1 से इंक्रीज करेगा और माइनस माइनस 1 से डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पर क्या है, 2 तरीके होते हैं. एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्टफिक्स. जब ऑपरेटर पहले आ जाता है प्लस प्लस या माइनस माइनस वेरिएबल से तो प्रीफिक्स कहा जाता है. जो ऑपरेटर बाद में आता है दैट इज कॉल्ड पोस्टफिक्स. तो अब प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट चेंज देन यूज्ड. पोस्टफिक्स क्या है, फर्स्ट यूज देन चेंज. प्रीफिक्स में पहले वैल्यू चेंज होती है तब यूज होती है, और पोस्टफिक्स में पहले यूज हो जाती है तब चेंज होती है.
अब एक चीज़ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये जान लीजिए, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस अकेले है, अकेले का मतलब है केवल वेरिएबल के साथ है और उसका और एक्सप्रेशन के साथ नहीं है और कुछ के साथ किसी के साथ नहीं है। जब अकेले होता है तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों का मतलब एक होता है। और जैसे ये इसके साथ मिल जाता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं अकेले रहते हैं शैतानी नहीं करते, कुछ बच्चे होते हैं अकेले रहते हैं शैतानी नहीं करते, जब उनका कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो शैतानी शुरू कर देते हैं। तो उसी टाइप का ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। जब अकेले रहता है तो कोई शैतानी नहीं करता, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक ही मतलब होता है, लेकिन जैसे ही किसी चीज़ का साथ मिलता है तब ये शैतानी शुरू करता है। कौन सी शैतानी? ये वाली शैतानी, फर्स्ट चेंज देन यूज, फर्स्ट यूज देन चेंज। जैसे हमने लिखा INT A = 5, तो ए क्या हो गई 5 हुई, हमने कहा A ++, ये A ++ क्या हुआ? पोस्टफिक्स। ये अकेले है, अकेले है तो अगली लाइन पे हम तभी आएंगे जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। नेक्स्ट लाइन पे हम तभी आएंगे, तो इसका क्या करेगा, ये क्या करेगा, A++ करेगा, A क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। जब हम कहेंगे system.out.println A, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 6 आएगा। पोस्टफिक्स होते हुए भी 6 आएगा। इसमें देखिए INT A = 5, A = 5 है, यहाँ क्या कहा ++ है, ये प्रीफिक्स है, यहाँ क्या था पोस्टफिक्स था, यहाँ प्रीफिक्स है। यहाँ जब ये लाइन के अगली लाइन पे तभी जाएगा जब ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये भी 1 से इंक्रीज कर देगा, A = 5 है, क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। जब हम कहेंगे system.out.println A, तो इसका भी आउटपुट 6 आएगा। इसका मतलब आप देखिए यहाँ पर A++ और यहाँ ++ है, ये पोस्टफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम आ रही है। क्यों? ये यहाँ ये अलोन है, ये भी अलोन है। अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट तभी जाएगा जो एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर है? तो ये ऐसा होता है, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ सोचते हैं कि 5 आएगा और यहाँ सोचते हैं 6 आएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू 6 होगी तभी यहाँ आएगा। वैसे यहाँ भी पहले 6 हो जाएगी तब यहाँ प्रिंट होगी। अब इस वाले में देखिए यहाँ क्या है, इस एग्जाम्पल में देखिए A = 5 है और हमने कहा system.out.println, यहाँ पर इस A++ को प्रिंट का साथ मिल गया, प्रिंट स्टेटमेंट का साथ मिल गया। अब ये शैतानी शुरू करेगा, ये क्या करेगा शैतानी करेगा। अब किस तरह की शैतानी करेगा, ये वाली शैतानी करेगा। अब यहाँ क्या है A = 5, A = 5 है, जब हमने कहा system.out.println A++, तो यहाँ पर क्योंकि A++ प्रिंट ln के साथ है इसलिए शैतानी करेगा। ये पोस्टफिक्स है तो पहले यूज होगी वैल्यू तब चेंज होगी, तो ये A की वैल्यू जो 5 है वो प्रिंट हो जाएगी, 5 प्रिंट होगी, उसके बाद A की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। आगे अगर फर्दर कोई सोल्यूशन क्वेश्चन एक्सप्रेशन में कहीं यूज करते हैं तो वो A की वैल्यू 6 यूज होगी, लेकिन यहाँ पर जब प्रिंट होगी वो प्रिंट 5 ही होगी। आगे अगर हम और कुछ लिख देते, कोई स्टेटमेंट जैसे लिख देते B = A+5 या A+9 कुछ कर देते तो 6+ करके आंसर आता। तो यहाँ पर जो यूज हुई है वो A की प्रीवियस वैल्यू यूज हुई है जो है, उसके बाद A की वैल्यू चेंज होगी। अगर आगे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग है तो वो 6 से होगी, लेकिन यहाँ पर प्रिंट 5 ही होगा। वही चीज़ इसमें देखिए INT A = 5, यहाँ क्या system.out.println, ये ++ है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रिंट के साथ आ गया, प्रिंट ln के साथ आ गया है, तो ये शैतानी करेगा। क्या शैतानी करेगा? फर्स्ट चेंज देन यूज। तो सबसे पहले A की वैल्यू चेंज होगी, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो वो प्रिंट होगी 6। अब यहाँ पर क्या किया इसने शैतानी की, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ क्योंकि A++ और ++ A को प्रिंट ln का साथ मिल गया, इसलिए इसने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। तो यहाँ पर क्या आएगी, क्योंकि ये पोस्टफिक्स है तो पहले प्रिंट हो जाएगी तब चेंज होगी एक वैल्यू, और यहाँ पर क्या प्रीफिक्स है, पहले एक वैल्यू चेंज हो जाएगी तब प्रिंट होगी, इसलिए यहाँ पर आंसर 5 आया है और यहाँ पर आंसर 6 आया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा A = 5, B = 3, C = 0। अब कभी भी ऐसा अगर हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि वैल्यू लिख लीजिए और जैसे जैसे वर्क होता जाए करते जाइए, सही हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास क्या है A, हम यहाँ पर ऐसे लिख लें वैल्यू तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। A क्या है 5 है, लिख लिया। B क्या है 3, लिख लिया। C क्या है 0 है। अब यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है A++, A++ मतलब पोस्टफिक्स, तो ये क्या करेगा A की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर आपकी A की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 5 है तो ये 5 रहेगी। अब यहाँ * है, उसका क्या है -B, यहाँ पर प्रीफिक्स है तो तुरंत ही B की वैल्यू क्या होगी
चेंज होगी, माइनस माइनस है तो यहाँ हो जाएगी 2, और ये क्योंकि a प्लस प्लस था इसलिए ये वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पर यूज तो 5 होगी, लेकिन क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 यूज होगी लेकिन चेंज हो जाएगी, तुरंत ही 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5 रहेगी और b को क्या 2 है तो यहाँ 2 यूज होगी। अब दोनों 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो c को क्या हो जाएगी, 0 से हटके 10 हो जाएगी। जब हम यहाँ कहेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एल ए टैब बी टैब सी, तो a की वैल्यू 6 है तो 6 प्रिंट होगी, b की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होगी, और c की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट होगी। तो कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू लिख लेंगे, और जो भी चेंज हो रहा है, अगर पहले चेंज हो रहा है प्रीफिक्स है तो पहले चेंज करेंगे तब यूज करेंगे, अगर पोस्ट फिक्स है तो पहले यूज कर लेंगे तब चेंज करेंगे। जैसे इसमें a 5 है तो a 5 लिख दिया, b 3 है 3 लिख दिया, c 0 है 0 लिख दिया। उसके बाद क्या क्या है, यहाँ a प्लस प्लस है यानी पोस्ट फिक्स है तो पहले 5 जो आपका है वो यहाँ यूज हो जाएगा, तब यहाँ 6 होगी। उसके बाद यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस माइनस भी है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले जो वैल्यू है वो एक से घटेगी, ये 3 है 3 से घट जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 यहाँ यूज होगी। तो 5 इंटू 2 सी को क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब जब हम प्रिंट करेंगे a टैब b टैब c तो दूर दूर तीनों वैल्यू प्रिंट होंगी, 6 2 10। ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हमेशा जब भी कैसे ज़रूरत हो हमेशा लिख लीजिए, लिख के प्रोसेस करेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन bitwise operators. Bit stands for binary digit. Bit stands for binary digit. Bitwise operator. Bit stands for binary digit. Binary digit. Binary B for binary and IT for digit. Okay. They work in binary of given number. ये किस पे काम करते हैं, बाइनरी पे काम करते हैं। जो नंबर हम यूज करते हैं उसकी बाइनरी निकलती है, उस बाइनरी पे कोई ऑपरेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बाइनरी को कैलकुलेट करते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल बिट वाइज ऑपरेटर। ये बिट पे काम करते हैं यानी बाइनरी पे काम करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। जैसे बहुत सारे हैं हमारे बिट वाइज ऑपरेटर, जैसे क्या है, ये सिंगल एंड जो साइन है ये बिट वाइज एंड होता है। ऑल आर 1 देन 1 अदरवाइज 0। जब दो सारे 1 होंगे, करस्पॉन्डिंग डिजिट 1 होगी, जब करस्पॉन्डिंग डिजिट 1 होगी तो 1 होंगे, अगर एक भी 0 हो जाता है तो 0 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग बिट की बात हो रही, उसके करस्पॉन्डिंग बिट। और ये और होता है, और में एक सीधी लाइन दिखती है लेकिन बीच में कटा होता है, अगर अच्छा रिजोल्यूशन हो तो दिखेगा। तो ये और होता है, ये बिट वाइज और है। ऑल आर 0 देन 0 अदरवाइज 1। अगर करस्पॉन्डिंग बिट हमारी 0 दोनों हैं तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। XOR में क्या होता है, ये XOR का होता है, ये बिट वाइज XOR है। इसमें अगर करस्पॉन्डिंग बिट डिफरेंट होती हैं तो 1 होता है, अगर डिफरेंट नहीं होती तो 0 होता है। उसके बाद हमारा आता है ये जो टिल्ड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं टिल्ड ऑपरेटर। ये बिट वाइज नॉट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 0 है तो 1, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। लेकिन इसका सबसे ईजी तरीका क्या है कि जो भी नंबर दिया गया है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। ऐड 1 एंड साइन चेंज, बिल्कुल सही आंसर आएगा। जैसे ठीक है, तो ये आपका हो गया बिट वाइज नॉट। अगला क्या है, जो 2 लेस देन साइन है, ये 2 लेस देन साइन ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, 2 राइट साइन ये राइट शिफ्ट होता है, और ट्रिपल राइट मोर देन साइन ये राइट शिफ्ट विद 0 फिल होता है। अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट नंबर ऑफ बिट्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट शिफ्ट में उतनी जो शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के बाद ऑपरेटर के बाद जो नंबर ऑफ डे लिखी होंगी उतनी बिट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होंगी, और 2 मोर देन साइन लगाएंगे तो उसके आगे जो नंबर लिखा होगा उतनी बिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होंगी। और अगर 3 मोर देन साइन लगा हुआ है तो जितनी बिट लिखी हैं उतने बिट राइट साइड शिफ्ट होने के बाद लेफ्ट साइड में जो स्पेस बचेगा वहाँ 0 आ जाएगा। राइट शिफ्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस होता है वहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन विद 0 फिल में वहाँ 0 आ जाता है। तो राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट विद 0 फिल कोई चेंज नहीं है अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है।
जब हमारा नंबर निगेटिव होता है तो चेंज आता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे का है ये, साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है, तो इसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर आगे इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी, जब आपको पढ़ाएंगे हम डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हाउ कैन बी चेंज द नंबर इन डेसिमल एंड बाइनरी। तो अगर डेसिमल में नंबर है हमारा, जो नंबर हम देते हैं वो डेसिमल फॉर्म में होता है, वो ये वर्क कैसे में करता है, बाइनरी में करता है, तो उसका तरीका क्या है, हम जो नंबर दिया है उसको 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आते जा रहे हैं राइट साइड में उसको उल्टा लिख लें। तो इसको बोलते हैं, जैसे मान लिया हमारा ये 5 है, तो 5 का अगर बाइनरी निकालनी है तो हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर अब इसको फिर 2 से करें तो 2 1 जा 2 होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर इसको 2 से करें तो 2 0 जा 0 होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और ये उल्टा लिखा जाएगा। ये किसकी बाइनरी हो गई, 5 की, 101, इसलिए हमने यहाँ पर 5 की बाइनरी 101 लिखा। अगर हमारा 6 है तो 6 को हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करें तो 0, रिमाइंडर 1, तो ये क्या होगा, 1 1। तो 5 की बाइनरी 101 होगी और 6 की बाइनरी 110 होगी। तो ये तरीका है निकालने का नंबर से बाइनरी। ये आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर जो है उसमें पढ़ाया जाएगा। 9 10 के बच्चों के लिए ये बिटवाइज ऑपरेटर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उनको, लेकिन 11 12 में ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पर एक चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसको पढ़ाया जाएगा। उसमें सारा कन्वर्जन बताया जाता है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। तो 4 तरीके का नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। कहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन में। हमने एक छोटा सा तरीका बता दिया आपको कि जब भी निकालना हो तो क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए और जो क्वेश्चन था नीचे लिख दीजिए, रिमाइंडर साइड में लिख दीजिए। ऐसे करते जाइए कब तक, जब तक 0 न हो जाए। जब 0 आ जाए तो जो हमारे रिमाइंडर निकले हैं उल्टा लिखा जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में। जो सबसे पहले निकला है वो बाद में लिखा जाएगा, जो सबसे बाद में निकला है वो पहले लिखा जाएगा। वैसे 6 का किया हमने। तो जो रिमाइंडर निकले, जब डिवाइड करेंगे 2 से, जो क्वेश्चन है उसको नीचे लिख दीजिए, जो रिमाइंडर है साइड में लिख दीजिए, और जो रिमाइंडर से हमारे निकले हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो वो बाइनरी हो जाती है, किसी नंबर की बाइनरी हो जाती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही हमने देखिए एग्जांपल लिखा है 5 and 6, तो 5 की बाइनरी हमने निकाला, देखो 101, तो 101 आ गई। 6 की बाइनरी हमने वहाँ निकाला है 110, तो ये 110 हो गई। जब हम करस्पॉन्डिंग बिट चेक करेंगे तो ये 1 3 डिजिट हैं, अगर कम होंगी तो, अगर नंबर आप डिजिट कम होती हैं तो लेफ्ट साइड में उतने 0 बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ 3 3 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ क्या है, 1 and 1 दोनों 1 है, तो इसलिए 1 हो गया। ये 0 and 1 0 हो जाएगा, 1 and 0 0 हो जाएगा। जब दोनों 1 होंगे करस्पॉन्डिंग तो 1 होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, 1 and 1 1, 0 and 1 1 0, 1 and 0 0। तो ये 101 ये 4 की बाइनरी है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, बाइनरी से नंबर, जो नंबर आपके पास है, जो भी नंबर है, जैसे मान लिया हमारा नंबर क्या है 100 है, तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखिए 1, इसके बगल में लिखिए उसका डबल करते जाइए 2, और उसका डबल करते जाइए 4। जिसके नीचे 1 हो उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ किसके नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, तो ये आंसर आपका 4 आया। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 5 और 6, तो 5 की बाइनरी 101 और 6 की बाइनरी 110। अब और में क्या है, दोनों करस्पॉन्डिंग बिट 0 होंगी तभी 0 होगा, नहीं तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 1 1 होता है, 0 और 1 1 होता है, 1 और 0 1 होता है, क्योंकि तो एक 1 जरूर आ रहा है। तो ये है 1 1 1। अगर 1 1 1 के निकालना हो नंबर, तो ये क्या है 1 1 1, ये 1 लिखिए, उसके बगल में 2 लिखिए, इसका डबल कर दीजिए 4, डबल करते जाइए, पहले 1 लिखिए फिर डबल करते जाइए। सबके नीचे 1 है, सबको जोड़ लीजिए, 4 + 2 6 + 1 7, ये 7 के बाइनरी है, इसलिए 7 हो गए। इस तरीके से आप बाइनरी से नंबर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करिए, पहले वाली डिजिट के ऊपर 1 लिखिए, उसके बगल में उसका डबल कर दीजिए, फिर उसके बगल में उसका डबल कर दीजिए, डबल करते जाइए। उसके बाद
जिस नंबर के नीचे 1 है वो ऐड करिए, जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी तरीका हमने बताया आपको, और भी तरीके हैं लेकिन सबसे इजी तरीका यही है कि राइट हैंड साइड से 1, फिर डबल 2, फिर 4, 8 ऐसे डबल करते जाइए, और जिसके नीचे 1 है उसको ऐड कर लीजिए, जिसके नीचे 1 नहीं है 0 है उसको ऐड मत करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है, जैसे ये था 1 0 0 तो 1 2 4 लिखा, केवल 4 के नीचे 1 है इसलिए 4 हो गया। यहाँ क्या है, तीनों 1 है तो 1 2 4, तो 4 2 1 सब तीनों ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 आ गया। अब यहाँ पर XOR है, XOR में क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग बिट डिफरेंट हैं तो 1 होगा, अगर सेम है तो 0 होगा। तो यहाँ देखते हैं 5 की बाइनरी 1 0 1, 6 की बाइनरी 1 1 0, तो 1 और 1 सेम है तो इसलिए 0 हो गया। ये 0 है ये 1 है डिफरेंट हैं तो 1 हो गया, ये 1 है ये 0 है डिफरेंट है 1 हो गया। ये 0 1 1 है, अगर 0 1 1 कैसे आया निकालना है तो ये 0 1 1, ये 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 4 के नीचे 0 इसको जोड़ेंगे नहीं, 2 और 3 के नीचे 1 है तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। ये बहुत इजी तरीका है। अब जैसे ये नॉट है, बिटवाइज नॉट 7 है, सीधा सा तरीका है 7 + 1 8 -1 हो गया, ये तरीका है। अब 7 की बाइनरी क्या होती है, 1 1 1 होती है, निकाल सकते हैं आप, और एक 4 डिजिट में लिख लिया 0। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1 सॉरी 0 है 1 1 1 है तो चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0, ये किसकी बाइनरी होगी 8 की होगी, इसलिए -8 हो गया। तो उसका ये तरीका है, क्या करिए जो नंबर दिया है बिटवाइज नॉट में उसमें 1 ऐड कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, सबसे इजी तरीका। अगला हमारा आता है शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट के लिए। लेफ्ट शिफ्ट में क्या है 13, लेफ्ट शिफ्ट 2। अब यहाँ पर हमने 13 की बाइनरी लिखी, 13 की बाइनरी हम निकालना चाहें निकाल लीजिए। 13 की बाइनरी निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट से तो क्या आएगी 1 1 0 1, 1 1 0 1 और लेफ्ट शिफ्ट 2। अब हमने 13 की बाइनरी यहाँ लिख दिया 8 बिट में, तो ये क्या है 4 0 हैं और ये 1 1 0 1। अब ये 2 बिट लिखा हुआ है शिफ्ट के लिए, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड। जब 2 लेफ्ट शिफ्ट होगा तो यहाँ 2 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे। अब ये बाइनरी हमारी क्या आई 0 0 1 1 0 1 0 0। अब इसको लिखें 1 2 4 8 16 डबल करते जाइए, जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे इसको जिसके नीचे 1 है तो ये 52 आएगा, इसलिए इसका आंसर 52 हो गया। अब जैसे ये राइट शिफ्ट है 13 राइट शिफ्ट 2, तो 13 की बाइनरी है 1 1 0 1 राइट शिफ्ट 2, इसमें 13 की बाइनरी मैंने लिखा। अब यहाँ क्या होगा राइट साइड शिफ्टिंग होगी, तो राइट साइड शिफ्टिंग होगी तो राइट साइड से 2 डिजिट गैप हो जाएंगी। तो जब 2 डिजिट गैप होगी बचेगा हमारा 1 1, तो 1 1 की बाइनरी क्या आएगी 3 आएगी। सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेफ्ट शिफ्ट में जितने बिट राइट में लिखे हों ऑपरेटर के साथ उतने 0 राइट साइड ऐड कर लीजिए और उसका आंसर वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे इजी तरीका क्या करिए, सबसे इजी तरीका क्या है, लेफ्ट शिफ्ट में राइट हैंड साइड में उतने 0 ऐड कर लीजिए, फिर उसका आंसर निकाल लीजिए, ये वैल्यू आएगी। और राइट शिफ्ट में राइट हैंड साइड से उतनी डिजिट गैप कर दीजिए, जो बचें जो वैल्यू आए वो लिख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके बाद आपका आता है राइट शिफ्ट विद 0 फिल, 3 जब मोर देन साइन आ जाते हैं तो 13। अब इसमें क्या है वही चीज़ है, 13 की बाइनरी है और 2 है तो 13 की बाइनरी लिखा। राइट शिफ्ट जब शिफ्ट किया तो 2 जो यहाँ ब्लैंक आ गया था यहाँ 2 0 डाल दिया तो वही आंसर आया 3। तो इसमें अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चाहे राइट शिफ्ट हो चाहे राइट शिफ्ट 0 फिल हो, एक ही मतलब है। ठीक है, निगेटिव नंबर जब होता है तो चेंज आता है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेंज होता है। यानी कि उसमें साइन एंड मैग्नीट्यूड में आता है। तो नंबर जब निगेटिव होता है तो साइन हमारा 1 होता है, पॉजिटिव होता है तो साइन 0 होता है। वो आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए बिटवाइज ऑपरेटर, हमने बता दिया सारे आपको। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मतलब है कि जब लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, लेफ्ट साइड जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल हो जिसमें वैल्यू असाइन करनी है वही वेरिएबल राइट साइड में हो, तो क्या करते हैं राइट साइड वाला वेरिएबल गैप कर देते हैं
और जो हमारा साइन है वो इक्वल से पहले आ जाता है। क्या है, अगर लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है वही वेरिएबल राइट साइड के एक्सप्रेशन में भी हो तो हम क्या करेंगे, राइट साइड के वेरिएबल को हम हटा देंगे और जो ऑपरेटर है वो इक्वल से पहले आ जाएगा। जैसे तो ये कौन कौन से होते हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मॉडुलस इक्वल एक्सेट्रा। ये कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, जितने भी ऑपरेटर हैं बिटवाइज, जितने भी ऑपरेटर हैं बिटवाइज सब आपके हो सकते हैं। बिटवाइज मतलब बाइनरी ऑपरेटर, जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं आपके सबके साथ ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लग सकता है, यानी बिटवाइज ऑपरेटर के साथ भी लग सकता है, यानी जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं सबके साथ लग सकता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है एस इक्वल टू एस प्लस ए, तो यहाँ पर एस इधर भी है इधर भी है, तो इस एस को हम गैप कर सकते हैं, ये प्लस साइन इक्वल के पहले आ जाएगा, तो वी कैन राइट एस प्लस इक्वल ए, एस प्लस इक्वल ए और एस इज इक्वल एस प्लस ए, दोनों बराबर है, दोनों का मतलब एक ही है। तो चाहे ये लिखें एस इज इक्वल टू एस प्लस ए, ये एस प्लस इक्वल ए, इसलिए इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, क्योंकि हम कुछ हटा देते हैं इसलिए इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। उसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, जो कोड हमारा कई लाइंस का होता है उसकी जगह एक लाइन में हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं और टर्नरी बोलते हैं। साथ में इसको बोलते हैं अल्टरनेट ऑफ इफ, इसको अल्टरनेट ऑफ इफ भी बोलते हैं। यानी इफ का ये अल्टरनेट भी होता है, ये इफ का अल्टरनेट भी होता है। जब आपको इफ बताएंगे तो इसका बता देंगे कि कैसे ये इफ से टर्नरी में और टर्नरी से इफ में कैसे कन्वर्ट होता है, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो अब यहाँ पर एक इसका सिंटैक्स होता है, क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। इसका तरीका क्या होता है कि ये जो एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो जो कोलन के बाद लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 2, तो अगर ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा, और जो भी वैल्यू आएगी या तो इसकी या इसकी जो एग्जीक्यूट होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा INT G इज इक्वल टू A मोर देन B क्वेश्चन मार्क A कोलन B, तो अगर ये A कंडीशन मोर देन B कंडीशन ट्रू है तो A स्टोर हो जाएगा G में, अगर ये फॉल्स है तो B स्टोर हो जाएगा G में। ये शॉर्ट कट है किसका, इफ का, यानी ये चेक करेगा कि A और B में कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वो G में स्टोर हो जाएगा, A बड़ा होगा तो A स्टोर हो जाएगा, B में बड़ा होगा तो B स्टोर हो जाएगा। तो बहुत छोटा हो जाता है हमारा कोड। इसी तरीके अगर स्ट्रिंग है, अगर मान लिया स्ट्रिंग में करना हो स्टोर, तो इसे ये लिखा हुआ P मोर देन इक्वल टू 35, यानी अगर हमारा परसेंटेज 35 और अबव है तो पास स्टोर हो जाएगा R में, अगर ये फॉल्स है तो फेल स्टोर हो जाएगा R में। दोनों में से अगर ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाला स्टोर होगा R के में, अगर ये फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला पोर्शन इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। नेस्टेड टर्नरी का मतलब है, नेस्टेड का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी ऑपरेटर अब उसी के अंदर, जैसे नेस्टेड इफ, नेस्टेड लूप, उसी तरीके ये होता है हमारा नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, यानी टर्नरी ऑपरेटर विद इन टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर विद इन टर्नरी ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। यानी टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। तो इसमें देखिए हमने छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, G इक्वल A मोर देन B क्वेश्चन मार्क A मोर देन C क्वेश्चन मार्क A कोलन C कोलन B मोर देन C क्वेश्चन मार्क B कोलन C। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखिए क्या है, ये एक्सप्रेशन 1 है, अगर कंप्यूटर नहीं कंफ्यूज होता है, ये एक्सप्रेशन 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्रेशन 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्रेशन 3 है। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, ये एक्सप्रेशन 3 है पूरा।
अब इस एक्सप्रेशन 2 में एक्सप्रेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 3 में 1 है, 2 है, 3 है, यानी टर्नरी के अंदर टर्नरी है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड टर्नरी। तो यहाँ क्या होगा, पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो यहाँ आएगा, यहाँ एक कंडीशन और दी हुई है, अगर ये ट्रू है तो ए स्टोर कर देगा जी में, अगर ये फॉल्स है तो सी स्टोर कर देगा जी में, अगर पहले वाली फॉल्स है तो यहाँ आ जाएगा कोलन के बाद बी मोर देन सी चेक करेगा, अगर बी मोर देन सी होगा तो बी स्टोर हो जाएगा जी में, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी सी स्टोर हो जाएगा जी में। यानी कि ये एक लाइन जो लिखी है ये 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा चेक करने के लिए है। अगर हम इफ से लिखें तो 6-7 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, इसमें क्या एक लाइन में काम हो गया, तो बहुत शॉर्टकट है ये, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट ऑफ इफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 है, यहाँ पूरा एक्सप्रेशन 3 है, और 2 के अंदर 1 2 3, 3 के अंदर 1 2 3, तो यानी पहले ये चेक करेगा कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो इस पर जाएगा, अगर ये ट्रू है तो इसको स्टोर करेगा, अगर ये फॉल्स है तो सी स्टोर करेगा, अगर ये ही फॉल्स हो गया तो कोलन पे जाएगा, इसको चेक करेगा, बी मोर देन सी, अगर बी मोर देन सी ट्रू है तो बी स्टोर करेगा, अगर बी मोर देन सी नहीं है तो सी स्टोर करेगा, यानी ए बी सी में से जो बड़ा होगा वो जी में स्टोर हो जाएगा। तो ये इसके लिए है ग्रेटेस्ट ऑफ एनी 3 नंबर्स। उसके बाद आता है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऑक्युपाई मेमोरी स्पेस फॉर रेफरेंस वेरिएबल। जितने भी रेफरेंस वेरिएबल होते हैं उनमें मेमोरी जब ऑक्युपाई करनी होती है तो न्यू लगाते हैं। जैसे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, अरे की मेमोरी ऑक्युपाई करना, तो जो रेफरेंस वेरिएबल हैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की को हमें क्रिएट करना है, तो इसका मतलब है हम मेमोरी ऑक्युपाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो देन वी यूज न्यू ऑपरेटर। तो इसके लिए क्या है, न्यू ऑपरेटर इट इज यूज टू ऑक्युपाई मेमोरी स्पेस फॉर रेफरेंस वेरिएबल लाइक ऑब्जेक्ट, अरे एटसेट्रा। अब जैसे अगर हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, किसी क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम क्या, इसका फॉर्मेट होता है, क्या सेंटेंस होता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू कंस्ट्रक्टर नेम। कई बुक्स में लिखा हुआ है क्लास नेम, वो क्लास नेम नहीं होता है। क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क होता है, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं होता है, और अगर क्लास जो लिखा है उसमें पैरेंथेसिस आ जाए तो क्लास नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टर हो जाता है। ये फंक्शन और कंस्ट्रक्टर जब चैप्टर आएगा तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये फॉर्मेट क्या होता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू कंस्ट्रक्टर नेम, क्योंकि यहाँ पर पैरेंथेसिस आ जाता है इसलिए वो क्लास नहीं रह जाता, वो कंस्ट्रक्टर हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ यह क्लास है, एस ऑब्जेक्ट नेम है, न्यू ऑपरेटर है, और यहाँ स्ट्रिंग ये क्लास नहीं है क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस आ गया है, इसलिए ये क्लास नहीं रह गया, ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर है। इससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो एस होगा, क्योंकि कोई वैल्यू हमने दी नहीं है इसलिए ये नल ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नाउ I am going to explain operator precedence. Operators means operators are used to operate the operands. Operators are used to operate the operands. ये मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ कि operators are used to operate operands. Operand means variables and literals. Variable और literal जब मिल जाते हैं तो उसको ऑपरेट करता है, जो उसको बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे हमने कहा b+7, तो b वेरिएबल है और 7 लिटरल है, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है बी और 7 को, तो ये आपका है ऑपरेटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब क्या है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा अगर किसी एक्सप्रेशन में है। एक्सप्रेशन का मतलब है जब कई ऑपरेटर और ऑपरेंड्स मिल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अगर कोई मतलब दो ऑपरेटर, एक ऑपरेटर और दो ऑपरेंड मिल जाएंगे तब भी एक्सप्रेशन हो जाएगा वो। जैसे ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, b+7 क्या है, एक्सप्रेशन है। तो वैसे ही बड़ा एक्सप्रेशन भी हो सकता है
तो हम कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करेंगे, कौन सा बाद में सॉल्व करेंगे, यानी कंप्यूटर कौन सा सॉल्व करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी जो पहले सॉल्व हो वो पहले, जो बाद में हो, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या है, ऑर्डर जो हमारा होता है वही एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, वही ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, कैलकुलेशन में कभी भी और दूसरा कोई ब्रैकेट नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस आता है, क्योंकि बाकी चीज़ें दूसरे के लिए होती हैं। तो ये सबसे पहले सॉल्व होता है। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉल्व होता है, ये तीनों हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, नॉट, बिटवाइज नॉट, ये फिर सॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारा न्यू सॉल्व होता है, अगर न्यू है। उसके बाद जो हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, तीनों की प्रेसिडेंस वैल्यू सेम होती, जो पहले मिलेगा लेफ्ट से लेकर राइट में वो पहले सॉल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ये तीनों की प्रेसिडेंस वैल्यू सेम होती है, जो पहले मिलेगा पहले सॉल्व होगा, जो बाद में मिलेगा बाद में सॉल्व होगा। तो ये तीनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, इसलिए इन तीनों में से जो पहले मिलेगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस वैल्यू सेम होती है, तो जो पहले मिलेगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, ये चारों में से जो मिलेगा वो सॉल्व होगा। उसके बाद ये आपका क्या है, ये इक्वलिटी चेक करता है, ये नॉट इक्वलिटी चेक कर सकता है, ये चेक करता है कि इक्वल है कि नहीं, ये चेक करता है नॉट इक्वल है, अगर है तो नॉट ट्रू, अगर नॉट इक्वल नहीं है तो फॉल्स। उसके बाद ये बिटवाइज एंड है, ये सॉल्व होता है, फिर बिटवाइज एक्सओआर है, ये सॉल्व होता है, फिर बिटवाइज एंड, फिर बिटवाइज एक्सओआर, फिर बिटवाइज और फिर लॉजिकल एंड। जब दो एंड होते हैं तो लॉजिकल एंड होता है, जब अकेला होता है तो बिटवाइज एंड होता है। इसी तरीके से जब ये अकेला होता है तो बिटवाइज और होता है, जब दो आ जाते हैं तो लॉजिकल और होता है। उसके बाद हमारा एक टर्नरी ऑपरेटर सॉल्व होता है, नहीं कंडीशनल ऑपरेटर सॉल्व होता है। उसके बाद हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होता है। असाइनमेंट शॉर्ट हैंड हो या सिंपल हो, जैसे इक्वल हो केवल, या प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एक्सेट्रा, यानी सीधे सीधे इक्वल हो या शॉर्ट हैंड हो तो सॉल्व होगा। ये हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। इस सीक्वेंस में हमारे ऑपरेटर सॉल्व होते हैं। ये सीक्वेंस है ऑपरेटर सॉल्व होने का, टॉप टू बॉटम। इस सीक्वेंस में हमारे ऑपरेटर सॉल्व होंगे अगर किसी एक्सप्रेशन में दिए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है टाइप कन्वर्जन। अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इसमें क्या होता है, कैसे टाइप चेंज होगा। दो तरीके का एक्सप्रेशन होता है, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर, यानी मिक्स, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड, प्योर एंड मिक्स्ड। प्योर में जो अगर कोई प्योर एक्सप्रेशन है, प्योर का मतलब है सारे जो वेरिएबल्स हैं उनका डेटा टाइप सेम है। जो सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल या लेटर हैं सबका डेटा टाइप क्या है, सेम है, वो क्या हो गया, प्योर हो गया। अगर हमारा डेटा टाइप डिफरेंट है एक्सप्रेशन में, किसी का कुछ है और किसी का कुछ है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो मिक्स्ड जो एक्सप्रेशन होता है, तो जब सॉल्व होता है तो जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइप प्रमोशन या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दो तरीके का टाइप कन्वर्जन होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को टाइप प्रमोशन भी कहते हैं क्योंकि हमेशा टाइप प्रमोट हो जाता है, या कार्सियन भी कहते हैं। और एक्सप्लिसिट जो होता है ये टाइप कास्टिंग होता है। एक्सप्लिसिट मतलब जबरदस्ती हम टाइप चेंज करते हैं, जब हम स्वयं टाइप चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। जब अपने आप से हो जाता है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में हम स्वयं चेंज करते हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, यानी जबरदस्ती चेंज करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा आई एन टी ए इज इक्वल टू 5, आई एन टी टाइप का है 5, डबल बी 2.0 सी 0.0। जो हमने लिखा सी इज इक्वल टू ए बाई बी, तो अब क्या हो गया, ए आई एन टी टाइप का है, बी डबल टाइप का है, तो इसका ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड एक्सप्रेशन है, तो इसका प्रमोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डबल में है इसलिए इसका एक्सप्रेशन का सोल्यूशन डबल में आएगा। तो 5/2 सॉल्व होगा, क्या होगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 सी में स्टोर होगा। जब हम प्रिंट करेंगे सी तो हमारा 2.5 प्रिंट होगा। इसी तरीके सेकेंड एग्जाम्पल है, ए 5 है और बी 2 है, ए और बी दोनों इंटीजर टाइप का है और सी हमारा डबल टाइप का है। अब हमने लिखा सी इज इक्वल टू ए बाई बी। अब ए बाई बी ये प्योर एक्सप्रेशन है, ए और बाई बी ये प्योर, ए और बी दोनों सेम टाइप के हैं आई एन टी, तो इसका आंसर भी आई एन टी आएगा। यानी क्या आएगा, 5/2 जो सॉल्व होगा तो आएगा 2.5
5 हट जाएगा, नहीं आएगा। तो जब वो डबल में स्टोर होगा तो वो क्या आएगा 2.0, 2.5 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.0 हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे हमने ये लिखा, थर्ड एग्जांपल है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, डबल c इज इक्वल टू 0.0। अगर हम यहाँ पर लिख दें डबल ब्रैकेट में, जब भी हमें टाइप चेंज करना होता है एक्सप्लिसिटली तो हम टाइप ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया डबल, अब a बाई b जो सॉल्व होगा ये डबल टाइप का हो जाएगा। तो जब a 5 है b 2 है तो सॉल्व होगा तो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ डबल लिख दिया है, इसलिए ये डबल आंसर आएगा। जब प्रिंट करेंगे c तो 2.5 आएगा। तो यहाँ पर हमने ज़बरदस्ती किया है, टाइप को हमने स्वयं चेंज किया है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। इसमें क्या है इम्प्लिसिटली हमारा टाइप चेंज हो गया है, डबल हो गया है। इसमें प्योर था इसलिए जो प्योर आ गया है एंटी टाइप का, लेकिन वैल्यू जब क्योंकि सी में स्टोर हो रही है तो 2 थी, 2 जब डबल में स्टोर होगी 2.0 हो जाएगी। और इस वाले में क्या हो रहा है, हम ज़बरदस्ती टाइप चेंज करें, क्योंकि ए और बी एंटी टाइप के थे, तो जब चेंज हमने ज़बरदस्ती टाइप बदल दिया, डबल हो गया, तो इसलिए वो 2.5 आएगा, 2.0 नहीं है। जैसे यहाँ 2.0 आ रहा था, हमने ज़बरदस्ती टाइप चेंज किया, डबल किया है, इसलिए 2.5 हो गया। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। उसके बाद हमने जो टोकन बताए थे, तो हमने आपको कीवर्ड्स थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आइडेंटिफायर्स एक्सप्लेन करे थे, लिटरल्स एक्सप्लेन करे थे, ऑपरेटर्स चल रहे थे। उसके बाद लास्ट जो हमारा क्या है वो पंक्चुएटर्स और सेपरेटर है। पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स, तो पंक्चुएटर और सेपरेटर में क्या है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज होते हैं मैंने बता दिया। पहला क्या है स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट कहीं दिख जाए तो आप जान लीजिए ये एरे से बात हो रही है। एरे मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स एरे मीन्स कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। जब एक साथ बहुत सारा डेटा आ जाता है एक टाइप का तो दैट इज कॉल्ड एरे। ये आगे एरे आपका चैप्टर है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है फॉर एरे। जैसे फॉर एग्जांपल INT A स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा B स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ये सिंगल डायमेंशन है, ये डबल डायमेंशन है। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब अरे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि सिंगल डायमेंशन या डबल डायमेंशन क्या होता है। उसके बाद आता है ये कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस जहाँ भी लग जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ग्रुप की बात हो रही है। जहाँ पर भी कर्ली ब्रेस आ जाए तो इसका मतलब है कुछ ग्रुप की बात हो रही है। तो कर्ली ब्रेस जब स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। जब कर्ली ब्रेस एलिमेंट में आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो ये ग्रुप बनाने के काम आता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो जैसे हमने लिखा फॉर, जैसे ये लिखा INT C स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू स्क्वायर कर्ली ब्रेस के अंदर 4, 7, 20, 18, 6, 100, 2। तो ये ग्रुप बन गया। किसका ग्रुप है, ये एलिमेंट का ग्रुप है। ये एलिमेंट का ग्रुप इस C एरे में स्टोर हो गया। ये कैसे होगा, जब एरे पढ़ाई जाएगी तो समझ में आ जाएगा। ये पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस जहाँ भी लग जाए तो दो काम के लिए पैरेंथेसिस होता है। एक तो फंक्शन के लिए होता है, जहाँ भी आपको दिख जाए समझ लीजिए वो फंक्शन है। अगर वो फंक्शन कैलकुलेशन में आ रहा है तो वो क्या है, ये बताने के लिए होता है कि कौन सा पार्ट पहले सॉल्व होगा। जो पार्ट पैरेंथेसिस के अंदर बंद हो जाएगा वो पहले सॉल्व होगा। अकॉर्डिंग टू आपने पढ़ा होगा मैथ्स में बॉडमास रूल। तो मैथ्स में बॉडमास रूल नहीं होता है, मैथ्स में होता है पेडमास रूल। पेड मतलब पैरेंथेसिस, P स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशिएशन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो कंप्यूटर में होता है पेडमास रूल। मैथ्स जैसे होता है बॉडमास, तो कंप्यूटर में हमारा क्या होता है, कंप्यूटर में हमारा होता है पेडमास। पेडमास चलता है। ठीक है, तो ये जैसे इसमें देखिए हमने लिखा S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर हमने A प्लस B प्लस C को पहले ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो पहले A प्लस B प्लस C आपस में ऐड होगा तब 2 से डिवाइड होगा। अगर हम ब्रैकेट हटा देते या पैरेंथेसिस हटा देते तो C केवल 2 से डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू पेडमास रूल। पहले डिवीजन होता है तब एडिशन होता है। ये हमने बताया ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो उसके हिसाब से। इसलिए जैसे ब्रैकेट लगा दिया तो ब्रैकेट सबसे पहले आता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब डिवाइड करेगा। अब इसी तरीके हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मेन क्या हमने लगा दिया, तो ये मेन क्या है, हमारा फंक्शन है। तो ये दो जगह यूज होता है, एक कैलकुलेशन में जिसको पहले सॉल्व करना होता है, दूसरा किसी फंक्शन में।
उसके बाद सेमीकोलन है, सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी लाइन एंड्स विद सेमीकोलन। जावा में हर लाइन का एंड सेमीकोलन से होता है, जैसे सेमीकोलन आता है कंप्यूटर समझ जाता है ये स्टेटमेंट का एंड हो गया है। जैसे INT A, B, C सेमीकोलन, तो ये बता इसका मतलब ये स्टेटमेंट एंड हो गया है। अब कॉमा टू सेपरेट एलिमेंट्स और वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर कॉमा लगा है तो ये वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, और यहाँ पर कॉमा लगा है तो ये एलिमेंट सेपरेट हो रहे हैं। तो कॉमा इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद आता है डॉट। डॉट ऑपरेटर भी है, डॉट ऑपरेटर भी है और पंक्चुएटर भी है। तो डॉट ऑपरेटर इज यूज टू डिफरेंशिएट सेपरेट क्लास और ऑब्जेक्ट विद डेटा मेंबर और फंक्शन। जैसे हमने लिखा डबल S इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT4। अब यहाँ पर मैथ क्या है, मैथ क्लास नेम है और SQRT क्या है, फंक्शन नेम है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए ये डॉट लगा हुआ है। अब जैसे हमने लिखा स्ट्रिंग W इज इक्वल टू लखनऊ, फिर हमने लिखा कैर CH इज इक्वल टू W डॉट कैरेट। यहाँ W क्या है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, और कैरेट क्या है, फंक्शन है। दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो डॉट क्या करता है, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम को फंक्शन या डेटा मेंबर से सेपरेट करता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स बताए और पंक्चुएटर्स बताए और टाइप कन्वर्जन बताए। हमने आपको सारे टोकन्स बता दिए हैं, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स और कीवर्ड्स। तो अब आगे जो कीवर्ड्स बचे हैं वो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम हाउ कैन वी टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड हाउ कैन वी डिस्प्ले डेटा ऑन मॉनिटर। तो इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया में भी जाके आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको जो वीडियो डालें तो आपको तुरंत ही मिल जाएं। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। कि होता क्या है कि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, पहले से किया हुआ है, फिर से दबाते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है। थैंक यू वेरी मच।